اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ایم ڈی میں 95، گولڑا میں 46 اور نیو کٹیارے میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ فرح ربانی سے مزید جانیں گے۔ فرح، آگاہ کیجیے گا۔ تقریباً 4-4:30 بجے کے قریب اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جو آہستہ بہت زیادہ تیز ہو گیا۔ ابھی اگر اسلام آباد کے اوپر سچویشن کی بات کریں تو اسلام آباد کی سڑکوں پر پانی جو ہے ہمیں بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آلریڈی، اور ساتھ ہی الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ بارش بہت تیز ہو سکتی ہے، الرٹ ہو سکتا ہے، جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں۔ اگر اوور آل سچویشن بارش کی بات کی جائے تو اسلام آباد کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر سید پور میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، گولڑا میں 66، بوکڑا میں 46 اور پی ایم ڈی 95 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر راول پنڈی کی بات کریں تو شمس آباد میں 25، کچہری میں 5، پیر بدائی میں 35 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اوور آل جو پانی کی سطح ہے اس میں بھی اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ گبال منڈی کا جو علاقہ ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 2 فٹ پانی جمع ہو گیا۔ کٹاریا میں بارش کا الرٹ جاری کر دیا گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15.3% جو حد ہے وہ اس کے قریب پانی پہنچ گیا، یعنی تجاوز کرنے کو ہے۔ گبال منڈی میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں اوور آل سچویشن دیکھی جائے تو شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں فرح ربانی آپ ساتھ ہی موجود رہیے۔ ذوالقرنین حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین، اسلام آباد کے سیکٹرز کی سڑکوں پر گاڑیاں ڈوبی ہوئی دیکھنا یہ تو شاید پہلی ہی مرتبہ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کون کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پر صورتحال خاصی خراب ہے؟ جی بالکل، یہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک مسلسل شدید طوفانی بارش جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ساتھ میں تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ اور اسلام آباد کے اگر میں سیکٹر کی خاص طور پہ بات کروں تو G8، G9، G10 اور G11 میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو گاڑیاں ہیں وہ ڈوب چکی ہیں۔ پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو چکا ہے، لوگ جو ہے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وقت G8 اور G9 کی بات کروں تو یہاں پر بجلی بھی چلی گئی ہے، کیونکہ دھماکے ہوئے ہیں ٹرانسفارمر میں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی جل گئے ہیں، جس کے باعث بجلی جو ہے سیکٹر کی وہ بھی منقطع ہو چکی ہے۔ آئسکو کام کا کہنا ہے کہ وہ بجلی کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم انتظار کیا جا رہا تھا کہ بارش کا سلسلہ تام تھم چکا ہے، لیکن جو ہے اس سے پہلے تباہی آ چکی ہے کہ گاڑیاں جو ہیں جو کہ پارکنگ میں کھڑی ہوئی تھیں۔ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ ہے؟ جی بالکل، G8 کی بات کروں، G9، G10 اور G10 کے جو سب سیکٹر ہیں، یعنی G10 1 ہے، 3 ہے، 2 ہے، وہاں پر بھی پانی ہے، اور اس کے علاوہ پیم کے سامنے جو ہے وہ بھی پانی ہے۔ G11 مرکز مارکیٹ جو مین ہے، جہاں پر عام طور پہ کافی تعداد میں گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی شدید پانی ہے، جس کی وجہ سے یہ گاڑیاں ڈوب چکی ہیں، اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ پانی جو ہے جلد از جلد یہاں سے ان کا اخراج ہو تو پھر وہاں سے جو پارکنگ خالی کی جا سکے۔ ساتھ ہی رہیے ذوالقرنین، فرح ربانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرح، بتائیے گا نشیبی علاقوں کی صورتحال کیا ہے، اور پھر خاص کر وہ آبادیاں جو کورنگ نالے یا کورنگ دریا کے قریب ہیں، ان کی کیا سچویشن ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ جو تمام اے سیز ہیں وہ اپنے علاقوں کا وزٹ شروع کر دیں۔ ابھی تک این ڈی ایم اے کی جانب سے یا ان علاقوں سے ایسی کوئی خبریں آنے کی اطلاع تو موصول نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر یقیناً یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں جیسی بارش ہوتی ہے، کورنگ نالہ ہو، بارہ کؤ ہو، اسلام آباد کے کچھ ڈفرینٹ علاقے ہیں، E11 سیکٹر کی ہم بات کریں، وہاں پر بہت زیادہ پانی جو ہے وہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گھروں میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تک تازہ ترین سچویشن لوگوں کی سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اگر انتظامیہ کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی جانب سے ابھی کوئی چیز ایسی ہمارے سامنے آئی نہیں ہے۔ راول ڈیم کی اگر ہم بات کریں یا دیگر ڈیمز کی بات کریں تو ان کے سپل ویز کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ راول ڈیم کی اگر بات کریں تو جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں سے پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، تو تب بھی این ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ کورنگ نالے میں جو پانی کا سلسلہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے، بہاؤ تیز ہو سکتا ہے۔ تو ابھی جس طرح کی بارش ہوئی ہے، جو اسلام آباد کی سڑکوں کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام آباد کے جو مختلف سیکٹرز ہیں وہاں پر شہریوں کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے، کیونکہ روڈ پر گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت ساری جو گاڑیاں ہیں وہ بھی خراب ہو رہی ہیں، ان میں پانی آنے کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے وہ بندش کا ان کو سامنا ہے۔ اچھا فرح، یہ بھی بتائیے گا، کیا بتایا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، کب تک سلسلہ رہے گا یہ بارش کا؟
बिल्कुल महकमे मौसमियात की जानिब से ये बारिशों का सिलसिला 3 तारीख तक जारी रहने के हवाले से बताया गया है। उनकी जानिब से यही कहा गया कि बारिशें अभी मजीद जारी रहेंगी। साथ ही साथ 12 अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। और जो सैलाब के इलाके हैं मुख्तलिफ इस्लामाबाद के अलावा अगर हम मुल्क के दीगर शहरों की बात करें और खासकर वो इलाके जहाँ पर अभी सैलाब ने मुतासिर किया हुआ है, वहाँ पर बारिशों का सिलसिला तेज हो सकता है और वहाँ पर सूरत हाल जो है वो खराब हो सकती है। इसके हवाले से PDMA और NDMA ने अलर्ट ऑलरेडी जारी किया हुआ है। महकमा मौसमियात भी वक्तन फवक्तन इसके बारे में दे रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जितना मुमकिन हो सके जो बिला वजह की ट्रैवलिंग है उसको भी महदूद किया जाए और अपने घरों की और अपनी चीजों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। ठीक है, फरा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अपने नाजरीन को बताते हैं मरी की सूरत हाल के बारे में। मॉनसून बारिशें 9वां स्पेल है जो कि वक्फे से जारी है। मरी में मुतादिद मकामात पर बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी बताई जा रही है। महकमा मौसमियात ने तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। इस वक्त ये मनाज़र भी आप देख रहे हैं। मॉनसून बारिशों का 9वां स्पेल जो कि बताया जा रहा है गालिबन आखिरी स्पेल होगा ये। इस सिलसिले में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुतादिद मकामात पर बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी भी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। इसके साथ साथ अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। PMD में 95, गोलड़ा में 66, न्यू कटारिया में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, बोकरा में 46, सैदपुर में 40, पीर वदाई में 35 और शमशाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। जी हाँ, इस वक्त इस्लामाबाद, मरी और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे। जुल्करनैन, इस वक्त इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का ये कहना है कि तमाम जो टीमें हैं वो तमाम सेक्टर में भिजवा दी गई हैं और सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। अगर कोई कहीं नुकसान हुआ है तो वहाँ पे फौरी तौर पे रेस्क्यू टीमें जो हैं वो भिजवाई जा रही हैं। अब नालों को ख़ास तौर पे मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि ताज़ा तरीन जो अपडेट आई है कि जो सेक्टर I11 के एरिए में जो बरसाती नाले हैं, अब बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि वो बरसाती नाले भी उनमें पानी आ चुका है जो कि कई सालों से खुश्क थे, मगर जो है अब उनमें पानी में तेज़ी आ चुकी है। इसी तरह सेक्टर G10 के जो नाले हैं वो भी पानी से भर चुके हैं, उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है, रिपोर्ट ली जा रही है ताकि उसी हवाले से मज़ीद जो इंतज़ामात हैं वो किए जा सकें। ताहम इस वक्त रेस्क्यू के जो इदारे हैं सारे के सारे वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, टीमें मैदान में मौजूद हैं, लेकिन अभी चीज़ों का जायज़ा भी लिया जा रहा है कि कहाँ पर कोई ज़रूरत है तो वहाँ पर वो पूरी की जाए। अभी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जा रही है। तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद मज़ीद जो इक़दाम हैं वो उठाए जाएंगे। तो जुल्करनैन, कितनी देर ये बारिश रही जो सूरत हाल ये बनी? ये कम अज़ कम जो बारिश है ये 30 से 35 मिनट से 45 मिनट का ड्यूरेशन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो तेज़ रही है और उसके बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट में जो शिद्दत थी उसमें कमी आई है। उस वक्त जो तमाम जो गलियाँ हैं वो भर चुकी थी, जो गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हुई थी मार्केट में ख़ास तौर पे वो मुकम्मल तौर पे गाड़ियाँ जो हैं वो डूब चुकी थी। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है G8 का, G9, G10 और G11, ये ख़ास तौर पे जो मरकज़ हैं इनके जहाँ पर तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पर क्योंकि पार्किंग भी ज़्यादा है तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पर जो है हमें ज़्यादा पानी देखने में आया है जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो डूब चुकी हैं। तो फौरी तौर पे लोगों की जानिब से रेस्क्यू इदारे और इंतजामिया को भी आगाह किया गया है कि यहाँ से पानी का जो अखराज है वो जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जा सके। अब क्योंकि बारिश रुक चुकी है तो उसके बाद जो टीमें हैं वो फील्ड में निकल चुकी हैं कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर फौरी तौर पे इस पानी का जो अखराज है वो निकाला जा सके। मैं एक बात कहूँगा कि इस्लामाबाद का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा है, जैसी बारिश रुकती है तो उसके बाद आसानी हो जाती है पानी निकलने में, लेकिन वो जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है वहाँ पर लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर जो है ख़ासतौर पर अगर आप कुरंग नाले की बात करें या दही एरिया जितने भी हैं और I11 के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है लोगों को शदीद परेशानी का सामना है क्योंकि वहाँ पर सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है तो पानी निकालने में वहाँ पर वक्त लगता है। अच्छा जुल्करनैन, इससे कबल हमने देखा कि इस्लामाबाद में जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ख़ास तौर पर E11 वो सेक्टर था जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था। शायद क्लाउड के घरों में दाखिल हो गया था, बेसमेंट्स में दाखिल हो गया था। अभी E11 की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, E11 में जो है अभी भी सिचुएशन जो है उस तरह की नहीं है क्योंकि वो उस वक्त भी जो नाला था, नाले के ऊपर घर बनाए गए थे जिसकी वजह से वो पानी ओवरफ्लो किया था। उसके बाद जब ये सूरत हाल हुई थी तो वहाँ पर नाले से जो है
जो कंस्ट्रक्शन थी वो गिराई गई थी, और जिसकी वजह से अब जो है वो बचत हुई है। अब मैं ताज़ा आपको ये बता चलूँ कि F11 जो है हिल रोड है, वहाँ की आप सूरत हाल देखें तो ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पे सैलाब आ चुका है। हालांकि वो काफ़ी पोश सेक्टर है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी और जहाँ पर ड्रेनेज जो है वो अगर सिस्टम फौरी तौर पे ख़राब हो जाए तो फिर पानी रुक जाता है और सड़कों पर फैल जाता है। लोग जो है अपनी मदद के तहत जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो साइड पे चले जाएं, लेकिन पार्किंग में जितनी गाड़ियाँ, ये रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो तमाम की तमाम आधी से ज़्यादा जो है वो डूब चुकी हैं। जुल्करनैन, बज़ाहिर ये अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन लग रही है, तो क्या इस किस्म की कोई प्रेडिक्शन थी पहले? जी, प्रेडिक्शन बिल्कुल ये थी कि इस्लामाबाद में 1 सितंबर से 3 सितंबर तक तूफानी बारिशें जो है वो हो सकती हैं और उनमें शिद्दत भी ज़्यादा हो, और ये अलर्ट तो गए बगैर NDMA की तरफ से भी जारी होते रहते हैं और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से भी, लेकिन NDMA ने कोई ख़ास आज के स्पेसिफिक आज के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से ऐसा कोई अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया था। लेकिन 2 से 3 रोज़ कब जो है ये बताया गया था NDMA की जानिब से कि इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ के मुल्क के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर शदीद तूफानी बारिश जो है वो हो सकती है, जो कि ये स्पेल नवा जो है वो शुरू हुआ है और इसमें काफ़ी शिद्दत होगी। और कल से ये मरी में भी कल से वक्फे से बारिश जो है वो सिलसिला जारी था, और उसके बाद आज जो है इस्लामाबाद में ये तकरीबन 2 बजे के बाद जो है ये मौसम ने एकदम अंगड़ाई ली है, और उसके बाद जो है बारिश शुरू हुई और उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। ड्यूरेशन भी इसका ज़्यादा था कि 35 से 40 मिनट तक मुसलसल शिद्दत के साथ बारिश हुई है, और फिर 5 से 7 मिनट तक उस शिद्दत में कमी आई है, जिसकी वजह से लोग बाहर निकले और पानी निकालने का काम शुरू किया है। जब ये शिद्दत से बारिश जारी थी तो उस वक्त ना तो पानी निकाला जा सकता था, और सूरत हाल यही थी कि जो गाड़ियां थी आधी से ज्यादा वो डूब चुकी थी। तो जुल्करनैन, अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि वो बरसाती नाले जो खुश्क पड़े रहते थे, शायद I-11 का आपने जिक्र किया, वहां पर भी खासा पानी खड़ा हुआ है। बाराकहू का जो नाला है, फिर जो नाला G6 से गुजरता है, उसकी क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, ये नाले ज्यादातर खुश्क ही रहते हैं, और जो ऊपर से जब बारिशें होती हैं पहाड़ी इलाकों में फिर वहाँ से पानी आता है तो वो यहाँ से गुजरता रहता है। लेकिन अब क्योंकि इस्लामाबाद में हुआ है तो नाले जो हैं उनमें पानी आ चुका है। ओवरफ्लो का अभी तक कहीं से कोई इतला नहीं मालूम हुई कि कोई ओवरफ्लो हुआ है, ताहम नालों में पानी आ चुका है, और अगर इसी तरह की दोबारा बारिश होती है तो फिर ये खतरा पैदा हो जाएगा कि नाले ओवरफ्लो कर सकते हैं और अर्बन फ्लड जो है उसकी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बारिश अगर G10 G11 की बात करें तो इधर तो अर्बन फ्लड की जो सूरत हाल है वो नजर आ रही है, लेकिन जो नाले हैं अब वो भी भर चुके हैं। अब वो जो पानी है, जो ड्रेन सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, उनका पानी भी नालों में जाके गिरता है, तो उसकी वजह से पानी का जो चढ़ाव है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर रुकावट ना हो तो ये पानी निकल जाता है, वरना ड्रेन सिस्टम खराब हो गया तो फिर ये पानी ओवरफ्लो हो जाता है। इस वक्त जितने भी रेस्क्यू के इदारे हैं, CDA का जो वाटर मैनेजमेंट का निज़ाम है, 1112 जो विंग है उसको मुकम्मल तौर पे मुतहरिक कर दिया है कि वो शहर में जो है गश्त भी किया जाए और चेक किया जाए कहाँ कहाँ मसाइल हैं या कहाँ कहाँ पानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर फौरी तौर पे उस पानी को निकाला जाए। तो क्या ऐसी मजीद बारिशों की प्रेडिक्शन भी है? जी बिल्कुल, अभी तक 3 सितंबर तक ऐसी प्रेडिक्शन है कि ये बारिश हो सकती है, और क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो मरी से बारिश हो रही थी उससे ये फील हो रहा था कि जब भी मरी में बारिश होती है तो इस्लामाबाद में भी बारिश होती है, उसमें शिद्दत भी ज्यादा आ जाती है। तो वो NDMA की तरफ से ठीक है जुल्करनैन, आपसे इस बारे में मजीद अपडेट्स भी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।